Hello everyone, welcome to PDC Classes. In the previous video lecture, already we have done first 6 questions of this additional practice paper. In this session, we will start from question number 7. Let's see the question. This question states that if in two triangles DEF and PQR, angle D equals to angle Q and angle R equal to angle E, then which of the following is not true? What we have to pick is which of the following is not true. Firstly, we need to draw the triangle DEF. Let me draw over here. We have to draw two triangles, that is DEF. Suppose this is the triangle DEF. Another triangle is triangle PQR. Another triangle is triangle PQR. All right. Let's see the question again. Angle D equals to angle Q and R equal to E. What are we given? D equal to E. Angle D equals to angle. So let me see again. Yes, angle D equals to angle Q and angle R is equal to angle E. All right. I hope it's very clear that angle D equals to angle Q and angle R equals to angle E already we are given. Now tell me one thing, that can we say that these two triangles are similar because of AA criteria? दोनों के two corresponding angles equal हैं, obviously both will be similar by AA similarity criteria. All right. Okay. What we can write is, we can write triangle DEF. Triangle DEF will be similar to triangle. नेमिंग पे ध्यान रखना है, इसमें D के corresponding कौन सा साइड है, सॉरी कौन सी एंगल है, Q. You have to write Q over here, and corresponding angle of E is R. You will write over here R, angle QR, and last vertex will be P. You can write over here P. Is it clear, sir? So what we are observing from here is these two triangles are similar. By which criteria? By angle criteria. By AA similarity criteria, isn't it? By AA similarity criteria. All right. Okay. So we know whenever two triangles will be similar, their corresponding angles are equal and corresponding sides will be proportional, isn't it? Then what will be the corresponding side of DE? देखो पिक कैसे करोगे, फर्स्ट टू लेटर DE है ना साइड का, इसमें क्या होगा QR. ऑल राइट. तो यू कैन राइट DE अपॉन QR विल बी इक्वल टू लास्ट टू लेटर क्या है सर, EF. इसमें क्या होगा RP. ऑल राइट. तो विल बी इक्वल टू RP. D अपॉन क्या लिखा हमने QR. यहाँ पे क्या होगा EF अपॉन RP will be, अब लेना फर्स्ट एंड थर्ड लेटर DF अपॉन QP. ऑल राइट. मीन्स अगर टू ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर है, तो ऑब्वियसली उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल. नेमिंग पे ध्यान रखना है, यहाँ DF सिमिलर टू आप PQR नहीं लिख सकते. इज इट क्लियर? जो लेटर यहाँ पे है ना, जो D आया ना, तो यू हैव टू चेक कि D के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है बेटा, Q. यहाँ Q लिखेंगे. ऑल राइट. सेकेंड में क्या लिखा आपने, E लिखा, तो E के करस्पॉन्डिंग कौन सी वर्टेक्स थी, R, तो यहाँ R लिखेंगे. ऑब्वियसली F विल बी इक्वल टू P, तो यहाँ F है तो यहाँ P आएगा. ऑल राइट. अच्छा अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखोगे, आपको ट्रायंगल नहीं भी देखना है ना, डायरेक्टली यहाँ पे अगर सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए विद द हेल्प ऑफ देम यू कैन राइट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल्सो. तो फर्स्ट टू लेटर DE अपॉन फर्स्ट टू लेटर इज QR, तो DE अपॉन QR बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल. DE अपॉन QR विल बी इक्वल लास्ट टू लेटर EF, लास्ट टू लेटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज RP, तो RP लिखेंगे यहाँ पे. फर्स्ट एंड थर्ड देखो वर्टेक्स D and F, DF upon QP. Is it clear? So this will be the proportional because corresponding part of similar triangles are proportional. ठीक है जी. corresponding side जो होंगे अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल होंगे. लेट्स सी द ऑप्शन. ठीक है.
वी हैव टू पिक विच वन इज रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग। तो क्या बोला है, ई एफ अपॉन पी आर विल बी डी एफ अपॉन पी क्यू, ई एफ अपॉन पी आर, ई एफ अपॉन पी आर है, हाँ सर, डी एफ अपॉन पी क्यू है, यस। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है सर। लुक एट सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या बोलते हैं, ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी, ठीक है, इक्वल टू डी अपॉन पी क्यू, ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी, ठीक है, वहाँ भी है। ये किसके इक्वल बोला है सर, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन पी क्यू। क्या ये डी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, नो। डी एफ अपॉन आर पी जो है सर डी अपॉन पी क्यू के इक्वल तो नहीं है, मीन सेकेंड ऑप्शन विल बी फॉल्स। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी, बिकॉज हमें पिक करना है फॉल्स ऑप्शन, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। जो ट्रू नहीं है तो सेकेंड पार्ट ट्रू नहीं होगा। क्या है थॉट प्रोसेस क्वेश्चन की, फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दिस टू ट्रायंगल सिमिलर, उसके बाद क्या करनी है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, देखो आप डी अपॉन क्यू आर डी एफ अपॉन पी क्यू के इक्वल आएगा, लेट्स सी, डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर, ठीक है जी, इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू के, देखो डी एफ अपॉन पी क्यू के इक्वल है ना, ठीक है। ऑल थ्री ऑप्शन विल बी करेक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी, ऑल राइट। तो अब करेक्ट ऑप्शन ऑफ 7 विल बी B, because this is not true for this. Now look at the 8th question. In the given figure, PQ is a parallelogram. You know one thing, in case of parallelogram, opposite sides will be equal as well as parallel. All right. Okay. What are we given? 80 equal to AQ, that is 6. Okay, 80 equals to AQ, that is how much we are given, 6 centimeter. AS, how much we are given, 3. AS, this one is 3. And TS, how much we are given, TS is 4. Okay, now we have to check which one is correct option. Now but you tell me one thing, that this angle and this angle will both be equal, yes or no? Why? Because though both are vertically opposite angle, isn't it? ठीक है जी, ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इफ आई टॉक अबाउट ट्रायंगल ATS एंड APQ की बात मैं करूँ तो इस ट्रायंगल के पार्ट कौन से, ये वाला एंगल, ये इसका पार्ट है, ये वाला एंगल है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑल राइट, ओके। दिस एंगल T विल बी इक्वल टू दिस एंगल Q, यस और नो? मीन्स जो आपका ATS है सर दैट विल बी इक्वल टू PQA, ठीक है। दोनों ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यस। अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, कि जो आपका साइड 80 है सर, ये साइड 80 है, दैट इज इक्वल टू साइड AQ, 6 है ना। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, T और Q? अल्टरनेट एंगल से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, ठीक है सर। एंगल T जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल Q, क्यों होगा सर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ऑल राइट, ठीक है सर। क्या लिखेंगे आप, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, कि कैन वी से कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। देखो एंगल साइड एंगल, साइड जो होने चाहिए दोनों पार्टिसिपेट एंगल की कॉमन होनी चाहिए, ठीक है सर। इसमें देखो दो एंगल पार्टिसिपेट किया, एंगल T और एंगल A, इनका कॉमन आर्म क्या है, दोनों एंगल की कॉमन आर्म क्या है सर, 80 है, कोई पार्टिसिपेट किया इसमें, ठीक है। यहाँ पे आइए, इफ यू टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल एंगल A और एंगल Q दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज एंगल A इस एंगल A के इक्वल है और एंगल Q आपका इस एंगल T के इक्वल है। ऑल राइट, कॉमन आर्म फॉर बोथ एंगल विल बी ऑब्वियसली AQ, इसने भी पार्टिसिपेट किया, तो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया बोथ विल बी द कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे दोनों से सिमिलर भी हैं, ऑब्वियस है यार, कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे ना, बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, बट जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे सारे सिमिलर होंगे, but सारे सिमिलर ट्रायंगल congruent हो, it's not necessary. Got it? So what we are observing over here is कि these two triangles are congruent by angle side angle criteria, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर एक ट्रायंगल congruent है तो इनके corresponding साइड इक्वल होंगे, राइट ना। सिमिलरिटी में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं, एंड इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, corresponding साइड विल बी इक्वल, ठीक है जी। अब मुझे बताओ इसमें एंगल T के सामने कौन सी साइड है, 3 है ना। इस ट्रायंगल में एंगल T के सामने कौन सी साइड है सर, 3 है, AS है, इट्स लेंथ इज 3, दैट विल बी इक्वल टू
करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो टी के इक्वल कौन सा एंगल था सर? क्यू था ना। क्यू के सामने कितनी एक्स, तो 3 विल बी इक्वल टू एक्स। आई होप इट्स वेरी क्लियर। एक्स की वैल्यू क्यों होगी सर? 3 होगी। सिंप्लिसिटी पढ़ा है आपने, ठीक है सर, सिंप्लिसिटी, ठीक है। ये एमसीक्यू है, यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टेप्स लिखने नहीं है, डोंट वरी, यस यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ विल यू गेट दिस मच। तो 3 विल बी इक्वल टू एक्स। ओके, नाउ नाउ टेल मी वन थिंग कि ये जो आपका एंगल ए है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है सर? वाई है ना, ठीक है। तो इस ए की अपोजिट साइड कौन सी है? 4 है। तो ऑब्वियसली वाई विल बी इक्वल टू 4, वाई विल बी इक्वल टू 4, 4 विल बी इक्वल टू वाई, यस और नो? ऑल राइट, ये भी क्या होगा सर? सिंप्लिसिटी से corresponding part of congruent triangle। तो x3 y4, इसमें अगेन यू कैन चेक t की अपोजिट साइड कितनी है? 3 है सर। t के इक्वल कौन था? q इस ट्रायंगल में, इसकी अपोजिट साइड x। तो ऑब्वियसली 3 विल बी इक्वल टू x because simplicity corresponding part of congruent triangles are equal। Now if we talk about opposite side of angle A in this triangle, angle PAS की बात, सॉरी TAS की बात कर तो 4 है। इसमें इस एंगल ए की अपोजिट साइड कौन है? वाई, बिकॉज दोनों एंगल इक्वल थे ना सर। तो 4 विल बी इक्वल टू वाई, x3 y4, x3 y4, विच ऑप्शन करेक्ट? डी ऑप्शन। इज इट क्लियर? राइट, क्वाइट इजी। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इन द गिवन फिगर 80 द टेंजेंट, 80 द टेंजेंट, ठीक है जी, to the circle with center O, center of the circle is O, we are given such that OT is 4, OT कितना है सर? 4 सेंटीमीटर, and angle OT है 30, already we are given। then 80, what you have to find is 80। all right, okay, now we can join OA। tell me one thing कि on joining OA, OA will be the radius, OA will be the radius, all right, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये आपको पता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है जी। तो वी हैव टू फाइंड 80, वी हैव टू फाइंड 80। नाउ टेल मी वन थिंग बच्चों कि फॉर दिस एंगल 30 डिग्री अपोजिट साइड AO विल बी द P परपेंडिकुलर, यस और नो? फॉर दिस एंगल अपोजिट साइड क्या होगा? P होगा सर। तो हमें पता चला कि P कितनी गिवन है सर? रेडियस के इक्वल है। P कितनी होगी? रेडियस, ऑल राइट, ओके। अच्छा जी, व्हाट अबाउट OT? OT क्या होगा बताओ इस एंगल के लिए? ऑब्वियसली हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस इज ऑलवेज सेम ना। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रायंगल में, ऑल राइट, बट आपकी हाइपोटेनस विल बी रिमेन सेम। तो फॉर दिस एंगल परपेंडिकुलर विल बी रेडियस, एंड व्हाट अबाउट बेस? तो बेस विल बी द 80, जो अपोजिट साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने क्या होगा सर? हाइपोटेनस, और जो रिमेनिंग साइड है, लेफ्ट ओवर साइड है, दैट विल बी बेस। अगेन 30 की अपोजिट साइड कौन सी है? ऑब्वियसली OA, तो OA क्या होगा आपका? रेडियस, दैट विल बी P परपेंडिकुलर। अच्छा, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी दैट विल बी अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, विल बी रिमेन हाइपोटेनस। लेफ्ट ओवर साइड कौन सा है? 80, दैट इज बेस। तो बेस क्या होगा आपका? 80 होगा सर, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी हाइपोटेनस? हाइपोटेनस आपको पता ही है इसमें क्या होगा? हाइपोटेनस विल बी 4 सेंटीमीटर, दैट इज OT, ऑल राइट, ओके। अब मुझे बताओ कि हमें हाइपोटेनस गिवन है और बेस फाइंड करनी है, 80 फाइंड करनी है। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, एंड व्हाट आर वी गिवन? वी आर गिवन सर हाइपोटेनस, ऑलरेडी वी आर गिवन, इजंट इट? तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बेस हमें फाइंड करनी है, दैट इज 80, एंड हाइपोटेनस गिवन है। तो बेस और हाइट होता है कॉस, यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री। क्या लिखेंगे? दिस ट्रायंगल यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ cos 30 डिग्री। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। द बेस हाउ मच वी आर गिवन सर? दैट इज 80 ना। तो बेस हमें पता है 80 अपॉन हाइपोटेनस कितनी है सर? 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ऑल राइट। you know the value of cos 30, that is how much? √3/2, √3/2 will be equal to 80 as it is, because 80 is unknown, upon equal 4, isn't it? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। what we need to do is cross multiplication, so you will get twice of 80, twice of 80 will be equal to 4 times of √3, isn't it? Now
80 will be equal to 4 root 3 upon 2. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. Our required answer will be 80 equal to how much? 2 root 3. 2 root 3, this much. Do check. Yes, option C will be correct. Is it clear? I hope it's very clear to all. Now we have to see question number 10. All right. Now let's see question number 10. All right. Okay. What are we given each? If cot theta, if 4 cot theta minus 5 equal to 0, then find the value of 5 sin theta minus 4 cos theta upon 5 sin theta plus 4 cos theta. All right. Means firstly we have to work on it. On the 4 cot theta minus 5 equal to 0. Tell me one thing, that on transposition of 5, can we write over here 4 cot theta, 4 cot theta, right? Okay, 4 cot theta equal to 5, yes or no? Means हमने क्या किया कि इसको ट्रांसपोज किया. All right, we transpose 5 from LHS to RHS. It will be 4 cot theta equal to 5. Then cot theta will be equal to 5 upon 4, yes or no? 5 upon 4. ठीक है जी. टेल मी वन थिंग बच्चों कि cot थीटा कितना है? 5 upon 4. ये आपको पता है इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा के. दिस इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, इजंट इट? ठीक है, हमें बताइए जो cot थीटा है यहाँ पे कितना है? 5 अपॉन 4. एंड वी नो कि cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा. यहाँ से क्या करना है आपको? लेना है cos थीटा इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ में वैल्यू पुट करनी है बेसिकली. तो हमने क्या लिया यहाँ से सर? वी कैन टेक cos थीटा इक्वल टू हाउ मच? 5 एंड sin थीटा इक्वल टू 4, राइट ना? एंड वी नीड टू पुट दिस वैल्यूज ओवर हियर. ठीक है जी. देखो 5 एज इट इज इनटू कितनी है? sin थीटा. sin थीटा कितना लिया? 4. 5 इंटू 4 माइनस कितना आएगा सर? 4 इंटू कॉस थीटा कितनी है? 5 इंटू 5 अपॉन 5 sin थीटा. तो 5 इंटू sin थीटा कितनी है? 4. 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा कितनी है सर? 5. तो इन न्यूमरेटर यू विल गेट 20. 5 4 जा 20 माइनस 4 5 जा 20, isn't it? अपॉन 20 प्लस 20 40. तो 0 अपॉन 40 विल बी इक्वल टू 0, isn't it? न्यूमरेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, तो रिजल्ट क्या होगा? 0, एक्सेप्ट यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. मतलब डिनोमिनेटर पे अगर आपका 0 नहीं है, अगर न्यूमरेटर 0 है, तो एज यू नो कि रिजल्ट विल बी 0. So which option is correct, sir? C option. All right. Now we have to see question number 11. In the given figure, the area of the segment ACB. What you have to find? Area of the segment ACB. Okay, ACB. So we know one thing, key formula of area of segment. That is what? Area of segment ACB will be equal to how much? Area of sector. Area of सेक्टर्स टोटल ये ले लेंगे सर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्लियर है बातें? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इजंट इट? सेक्टर ले लेंगे. सेक्टर आपको पता है ना, रीजन इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड आर्क. तो जो BC आर्क और 2 रेडियाई कौन से हैं आपके? BO एंड OA. तो पूरी जो एरिया होगी ना, ये होगा सेक्टर. ऑल राइट. इस सेक्टर से क्या किया आपने? व्हाइट वाले पार्ट को माइनस करोगे तो ब्लू वाला पार्ट मिलेगा यहाँ पे, इजंट इट? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर? अच्छा, यहाँ पे जो सेक्टर बन रहा है वो बन रहा है क्वाड्रेंट. क्या बन रहा है? क्वाड्रेंट. तो 90/360 कितना होगा? 1/4. तो यू कैन राइट 1/4 पाई आर स्क्वायर. यू नो द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज हाउ मच? 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यू कैन अप्लाई ओवर हियर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस भी पता है और हाइट भी पता है. डोंट बी कंफ्यूज विद हाइट एंड हाइपोटेनस, राइट ना? हाइपोटेनस जो होगी वो हमेशा क्या होगी? 90 की अपोजिट साइड होगी. इज इट क्लियर? एंड हाइट क्या होगी सर? किसी भी वर्टेक्स से अगर आपने अपोजिट साइड पे 90 ड्रॉ किया, वही हाइट होगी.
वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड कौन सी है, ओ ए, इस पर आपने 90 ड्रॉ किया तो हाइट होगी। अब हाइट इसको भी ले सकते हैं ओ ए बी, बिकॉज ए वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है सर, बी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को बेस मानो राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी को हाइट बोलो, हाइपोटेनस को छोड़ के, डजंट मैटर। ऑल राइट, ओके। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ, बेस भी आर है, हाइट भी आर है, तो बेस इंटू हाइट, तो आर इंटू आर कितना होगा सर, आर स्क्वायर, इजंट इट। नाउ टेल मी वन थिंग, इन बोथ द टर्म व्हाट इज कॉमन, आर स्क्वायर, टेक इट आउटसाइड। तो व्हाट इज लेफ्ट इन फर्स्ट टर्म, पाई बाई 4, यहाँ लिखेंगे पाई अपॉन 4, माइनस क्या बचा सर, 1/2, isn't it? Now r square as it is. Now we need to take LCM of both the denominator, that is how much, 4, 4 1 जा 4, 1 into pi, pi minus 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, will get 2, 2 1 जा 2, how much we are getting, r square by 4 into pi minus 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, r square upon 4 in bracket pi minus 2, isn't it? Then which option is correct, option number A. Is it clear? What we did, we subtracted area of triangle from area of sector in order to find area of segment। इस ब्लू रीजन को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पूरी सेक्टर से जो ट्रायंगल है वाइट वाली, इसको माइनस किया। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। 12 states that two cubes each with 6 cm each are joined end to end. The surface area of resulting cuboid. Whenever you are going to join two cubes, तो it is obvious ना कि क्या फॉर्म होगी, cuboid. Why? Because length आपकी इंक्रीज हो जाएगी सर, and breadth और height क्या होगी, सेम। Let's see over here. देखो टू क्यूब्स हैं, इस क्यूब की सर लेंथ हो गई है, इस क्यूब की लेंथ हो गई स्मॉल एल ये, इसकी ब्रेड्थ हो गई सर ये, एंड हाइट हो गई ये। क्या दोनों 6 है? यस। ओवर हियर इन दिस क्यूब, इसकी लेंथ भी सर कितनी है, 6 है, इजंट इट? अच्छा, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, ये भी 6 है सर, जो ब्रेड्थ है बी भी 6 है, एंड इसकी भी जो हाइट है ना, दैट इज हाउ मच, 6, राइट। अब इसको एंड टू एंड आपने ज्वाइन किया, एंड टू एंड क्या किया आपने, ज्वाइन किया, तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड। बिकॉज नाउ जो न्यू लेंथ होगी क्यूबॉइड की, दैट इज हाउ मच, न्यू लेंथ ऑफ क्यूबॉइड विल बी हाउ मच सर, 12। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी होने वाली है सर, न्यू क्यूबॉइड की जो ब्रेड्थ होगी दैट इज हाउ मच, रिमेन सेम, दैट इज 6, देखो 6 होगा। एंड व्हाट अबाउट हाइट, न्यू जो हाइट होगी सर दैट इज ऑल्सो रिमेन सेम, दैट इज हाउ मच, 6। न्यू एच भी क्या होने वाली है, 6। ठीक है, चेंज क्या हुआ सर, क्यूबॉइड की लेंथ चेंज हो गया, दैट इज हाउ मच वी गॉट नाउ, 12। ब्रेड्थ एंड हाइट विल रिमेन सेम, दैट इज 6 and 6। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड TSA of cuboids, we have to find TSA of cuboid। all right, we have to find TSA of cuboid. So we know the formula to find TSA of cuboid. Let me plug in the charger. Okay, of cuboid, that is how much sir, we know twice of क्या होगा, LB प्लस क्या होगा, BH प्लस HL, isn't it, plus HL। all right, 2 as it is। L how much we are given, 12 into 6 plus B6, height is also 6, plus H कितनी है सर, 6, and L how much we have, 12, isn't it? 2 as it is, 12 6 are 72 plus 6 6 are 36 plus 12 6 are 72। all right, so 2 in bracket, on adding all three how much you will get, 180, and 182 जा will be sir 360। मीन्स जो टोटल सरफेस एरिया आएगी फॉर द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, दैट इज हाउ मच विल यू गेट, दैट इज ऑब्वियसली 360। लेट्स सी द ऑप्शन, लेट्स सी द ऑप्शन कितनी है सर, 360, यस। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है जी। नाउ लुक एट 13th क्वेश्चन। 13th question says that a sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere। मतलब आपको क्या गिवन है, हेमिस्फीयर गिवन है। ठीक है, यहाँ से क्या काटा आपने, स्फीयर काटा,
And what are we given? We are given radius of hemisphere, that is how much? 7 centimeter. Then the ratio of volume of original hemisphere to that of cut out sphere. हमें दोनों की वॉल्यूम निकालनी है. किसकी किसकी निकालनी है? We have to find the ratio of volume of original hemisphere to the cutout sphere. Okay, let's understand with the help of picture. Right? See. Let me show you the picture. Yeah. See. ये जो सर आपकी येलो वाली पार्ट है दैट इज हेमिस्फीयर. क्या मानना है आपको? इसको हेमिस्फीयर मान. इसके अंदर से क्या काटा हमने? स्फीयर काटा. इज इट क्लियर? एज पर गिवन क्वेश्चन, राइट, वी हैव टू कट अ स्फीयर फ्रॉम द हेमिस्फीयर. अगेन यू कैन रीड द क्वेश्चन. अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. अब मुझे बताओ कि इससे बड़ी स्फीयर तो काट नहीं सकते ना यहाँ से आप. इससे बड़ी स्फीयर नहीं काट सकते. सबसे जो बड़ी स्फीयर होगी जो आप कट करेंगे फ्रॉम द हेमिस्फीयर तो इस तरह से होगी कि उसकी जो डायमीटर होगी, दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इजंट इट. तो मैं नेम ले लेता हूँ, सपोज करिए ओ ए, राइट, दिस वन इज सपोज बी एंड दिस वन इज सी. ऑल राइट, ठीक है जी. चलो, तो ओ ए क्या है सर? ओ ए इज द डायमीटर. ओ ए जो है दैट इज व्हाट? डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर. एंड व्हाट अबाउट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर? What about radius of hemisphere? That will be OA. That is what? Radius of hemisphere. Yes or no? And how much we are given? 7 centimeter. How much we are given? 7 centimeter. All right. ठीक है. Again, maximum जो आप सबसे largest size की sphere cut करेंगे from the hemisphere, that then what will happen? Radius of the hemisphere will be equal to डायमीटर ऑफ द स्फीयर. इससे बड़ी आप स्फीयर को यहाँ से कट नहीं कर पाएंगे. इज इट क्लियर? ओके. नाउ तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. क्लियर है बातें सर? ओके. इसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हेमिस्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ऑल राइट. ओके. नाउ टेल मी वन थिंग. पहले दोनों की रेडियस लिख लेते हैं ना, कितनी गिवन है. तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 है सर. एंड व्हाट अबाउट इफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 7? इफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 7, then what will be radius of the sphere? What will be the radius of the sphere? That will be 7 by 2. That will be how much? 7 by 2 centimeter. Clear है बातें? Now look at here. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होगी सर? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 2/3 pi r cube pi. And how much radius we are given for the hemisphere? 7. You can write 7 whole cube. 7 whole cube. All right. Divided by volume of sphere. Volume of sphere will be 4/3 pi r cube, 4/3 pi as it is. And what is radius of a sphere? Radius of a 7 by 2. You can write 7/2 whole cube. Is it clear? Now 2/3 as it is, pi as it is लिखेंगे, 7/3 लिखेंगे as it is. अब बताओ, जब यहाँ पे साइन आप चेंज करोगे, यहाँ लिखा आपने मल्टीप्लाई, इसका क्या करेंगे आप? लिखेंगे रेसिप्रोकल, इजंट इट. ये 3 कहाँ जाएगा आपका? न्यूमरेटर में. ऑल राइट. एंड ये जो 2 का क्यूब होगा दैट विल ऑल्सो बी इन द न्यूमरेटर, इजंट इट. और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा सर? यू विल गेट 4 pi and 7 whole cube. yes or no? इज इट क्लियर? मीन्स यहाँ डिवाइड का साइन था, आपने क्या किया? मल्टीप्लाई. जब भी आप फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, गलतियाँ नहीं होंगी आपसे. गॉट इट? तो आपने क्या किया? इसको रिप्लेस कर दिया, इसको मतलब चेंज किया आपने. डिवाइड को क्या लिखा? मल्टीप्लीकेशन में वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेज में, राइट. तो 3/4 पाई कहाँ है? न्यूमरेटर में. यहाँ कहाँ होगा? डिनोमिनेटर में. ऑल राइट. यहाँ 2 की पावर जो 3 है दैट इज इन डिनोमिनेटर. यहाँ पे किस में होगी? न्यूमरेटर में. 7/3 कहाँ होगी? यहाँ पे न्यूमरेटर में. यहाँ पे कैसे लिखा आपने? डिनोमिनेटर में. ऑल राइट. अब इसको क्या करेंगे? जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई. तो
5 will cancel. All right, 2 power 3, no, 7 power 3 over here, 7 power 3 over here will be cancelled. All right, 3 and 3 will also be cancelled. Now, so how much we are getting? Now again we can cut it. 2 1 ja and 2 2 ja, isn't it? So in the numerator, what is left? 2 power 3. 2 power 3 means 8. 8. And in the denominator you are getting 2. So on simplification you will get 4. Right? Then volume of hemisphere upon volume of sphere will be equal to how much? 4/1. तो जो इनकी रेशियो होगी सर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर will be equal to 4:1, isn't it? This will be our required result. Let's see the option. 4:1 are we given? Yes. So which option is correct? Option number D will be correct. I hope it's very clear to all. All right. Now let's solve question number 14. Question number 14 states that the distance between 2 points A and B on the graph is given as under root 10 square plus 7 square. The coordinates of A are -4,3 and given that B lies in the first quadrant. You know beta ji one thing, in the first quadrant x coordinate and y coordinate both are positive. All right. Okay. Now then all the possible x coordinates of point B are, we have to find coordinates of point B. So let's solve it. See what we given. We are given a point A which coordinate is -4,3 and another point is B and coordinates of point B is not given. Let's say x, y. All right, and distance we are given, that is how much? Distance AB we are given, that is under root 10 square plus 7 square. Yes, that is how much? Under root 10 square plus 7 square. This much we are given, right? Okay, so we know the formula of to find distance, that is difference of x coordinate square minus difference of y coordinate square inside the root. We can write under root x minus of -4 whole square, isn't it? Plus y coordinate कितनी है इसकी? y -3 whole square will be equal to under root 10 square plus 7 square, isn't it? Now अब क्या करेंगे सर? We have to solve inside the root. Then how much will you get? x माइनस से माइनस प्लस होगा ना, मल्टीप्लाई में है तो +4 होल स्क्वायर +4 होल स्क्वायर plus you can write y -3 whole square inside the root. All right, will be equal to how much? Under root 10 square plus 7 square. ठीक है जी, चलो अब क्या करेंगे आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड. अगर आपने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, देन दिस वन विल बी हाउ मच? x +4 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर will be equal to how much? 10 power 2 plus 7 power 2. Okay, now बच्चों tell me one thing कि 10 power 2 plus 7 power 2 अगर मैं चाहूँ तो can I write 7 power 2 plus 10 power 2? अच्छा, ऐसे क्यों किया? We will see in coming steps. Right now just you have to understand that this much 10 square plus 7 square can be written as 7 square plus 10 square. कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा है एडिशन में, किसी को पहले लिखो, डजंट मैटर एट ऑल. ऑल राइट. ओके, नाउ जस्ट नीड टू कंपेयर इट. तो x प्लस जो 4 की स्क्वायर होगी दैट विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर. बताओ, x प्लस 4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 10 स्क्वायर. ठीक है, नाउ x प्लस 4 विल बी इक्वल टू हाउ मच? plus minus 10 square. But what we given? We given ki x will lie in first quadrant. That's why we have to take only positive value.
तो x प्लस 4 की जो वैल्यू होगी हमें कितना लेना है, वी हैव टू टेक हाउ मच 10 होल स्क्वायर। ऑल राइट, वी हैव टू टेक हाउ मच 10 होल स्क्वायर। ऑल राइट, ओके, टेल मी वन थिंग बच्चों, कि ओवर हेयर जो आपने लिया x प्लस 4 लिया ना, ये अंडर रूट में आएगा सर 10 स्क्वायर। x प्लस 4 विल बी कितना होगा, पॉजिटिव का अंडर रूट 10 स्क्वायर। ऑल राइट, x plus 4 will be equal to how much, plus 10, right? X plus 4, how much will you get, plus 10. Then on transposition, value of x will be 10 minus 4 will be equal to 6. Is it clear? Value of x will be equal to how much, 6. Now as I told you, okay, firstly we have to find only x coordinate. Let's see the question again. What we have to find, we have to find x coordinates of point B. Tell me one thing, instead of this much we can write this much, obviously, क्योंकि एडिशन में 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर किसी को पहले लिखो, मीनिंग विल बी रिमेन सेम बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव, isn't it? Okay, now again we can compare this quantity x plus 4 whole square with 7 square. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, over here you can write x plus 4 whole square will be equal to 7 square. Then x plus 4 will be equal to plus minus under root 7 square, isn't it? Now then x plus 4 will be equal to how much, plus 7. Why? Because x will be always positive, because the point A will always lie, sorry, point B will always lie in first quadrant, and as we know कि in the first quadrant x and y both are positive. तो x पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है ना कि x प्लस 4 की वैल्यू भी पॉजिटिव है। x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 7, ऑन ट्रांसपोजिशन x विल बी हाउ मच, 7 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 3। मीन्स टोटल x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं सर, 2, दैट आर व्हाट ऑल, 6 and 3. What all possible values are x, we got 2 possible values of x that are 6 and 3. So 6 and 3 we got. Let's see the option. हमें क्या मिला, 6 और 3 मिला, राइट ना। x की जो वैल्यू 6,3 लिख सकते हैं यहाँ पे, पर ध्यान ये रखेंगे x y की वैल्यू नहीं है, x की 2 वैल्यू मिला आपको। x की वैल्यू कितनी मिली, 6 भी मिला और 3 भी मिला सर। ऑल राइट, आपसे पूछा है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर मल्टीपल ऑफ 2 6 तो है, 3 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 यस, तो 6 and 3 both are multiple of 3, means option B will be correct. Is it clear? Option B will be correct. I hope it's very clear to all. Now let's understand the question number 15. Question number 15. Firstly, let me erase it. Yes. Question number 15 states that if A 1,2, B 4,3 and C 6,6 are the three vertices of a parallelogram ABCD, then the coordinates of fourth vertex D, क्या find करनी है, coordinate of fourth vertex D we have to find. Okay, let me draw a parallelogram over here. Yeah, this is the parallelogram A, B, C and D. All right, coordinate of A are 1,2, कितनी है बेटा जी, 1,2 we can write. What about coordinate of B, 4,3, 4,3, C कितनी है, 6,6, 6,6, and what about D, D coordinates of D are unknown, so we can write x, y. ठीक है जी, okay. Next, now you have to remember one concept, that is x coordinate of opposite vertex, sum of x coordinate of opposite vertex or sum of y coordinates of opposite vertex of the parallelogram will be remain same. For example, देखो ये 1 है, ये c है सर, 1 की x कोऑर्डिनेट कितनी है, 1, यहाँ लिखने हैं आपको 1,
प्लस सी की एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है 6, तो 1 प्लस जो 6 होगा सर दैट विल बी इक्वल टू डी और बी का देखो, डी की एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है एक्स है प्लस व्हाट अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट बी 4 है। क्लियर है बातें? तो ये बात आपको याद क्या रखनी है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स विल बी रिमेन सेम इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे आप मिड पॉइंट थ्योरम भी अप्लाई करके कर सकते हो, बट दिस विल बी इजियर मेथड देन दैट ऑफ यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ऑलराइट, देखिए अगेन एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है ए की, पहले बताओ अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, सी है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट लो 1 प्लस 6, यस। अब बताओ कि ये दो बच के अपोजिट वर्टेक्स डी और बी, तो डी की एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, बी की एक्स कोऑर्डिनेट 4 प्लस 4, सिंप्लीफाई करते हैं, सिमिलरली वाई की भी लेंगे यहाँ पे, तो 6 प्लस 1 7 विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 4, 7 माइनस 4 विल बी इक्वल टू एक्स, कितने आएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 3। लेट्स फाइंड y, y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट वर्टेक्स की जो आपकी x कोऑर्डिनेट का सम होगा वही दैट विल बी इक्वल, एंड y कोऑर्डिनेट्स के भी सम क्या होंगे सर इक्वल होंगे। तो a की अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है c, a की y कोऑर्डिनेट कितनी है 2 प्लस c की y कोऑर्डिनेट 6 विल बी इक्वल टू व्हाट इज y कोड, ओके 2 प्लस 6 ले लिया आपने, y कोऑर्डिनेट ऑफ d y प्लस व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ b 3 ना, विल बी इक्वल टू 3, 6 प्लस 2 8 विल बी इक्वल टू y प्लस 3 एंड 8 माइनस 3 विल बी इक्वल टू y, तो कितना मिला 5, राइट। x की वैल्यू 3 y 5, x 3 y 5, यस डी ऑप्शन इज करेक्ट, गॉट इट। तो क्या कंसेप्ट आपने सीखा यहाँ से कि कोई भी पैरेललोग्राम गिवन है उनके अपोजिट वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का जो सम होगा दैट विल बी रिमेन सेम, मतलब यहाँ 1 प्लस 6 एक्स कोऑर्डिनेट के सम हो गए, हाँ, तो इस अपोजिट वर्टेक्स के भी सम सेम ही आएगा दैट इज 4 प्लस एक्स, गॉट इट। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे सेम होंगे, लाइक 2 प्लस 6 विल बी इक्वल टू वाई प्लस 3, इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, then required coordinates of point D will be 3 comma y 3 comma 5, all right, over here which option is correct beta ji, 16th option will be correct। now let's see question number 16th, question number 16th states that if two linear equations in variables x and y are given below, ये आपके equations है, equation number 1 equation number 2, which of the following pieces of information is independently sufficient to determine if solution exists or not for this pair of linear equations। तो ये इन्फॉर्मेशन से कुछ तो मिल नहीं रहा है, क्रॉस करो क्योंकि हमने ये कुछ पढ़ा ही नहीं है। a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2, c1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, ऑल राइट। अच्छा a1/a2 तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है सर, तो इसको भी क्रॉस करेंगे। व्हाट अबाउट 1 and 4, लेट्स सी। बेटा जी टेल मी वन थिंग कि a1/a2 ठीक है सर विल बी a1/b1, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, देखो ये ध्यान सुनना, पहले आपने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जरा याद करिए कि ए अपॉन बी जो है सर अगर इक्वल है सी अपॉन डी के, ऑल राइट, तो इसको आप लिख सकते हो ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी। डू यू रिमेंबर व्हाट यू कैन राइट इज ए अपॉन सी विल बी इक्वल टू बी अपॉन डी, यस और नो, ये याद आया क्या? ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, डेफिनेटली विल गेट दिस मच। तो इसको याद रखना है कि ए अपॉन बी अगर इक्वल है सी अपॉन डी के, तो यू कैन राइट ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी, ऑल राइट। तो जस्ट वी नीड टू वर्क ऑन इट। इसको क्या लिख सकते हो आप, a1/a2, देखो क्या लिखोगे, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1/b2 विल बी इक्वल टू b1/b2, राइट। अच्छा जी, अच्छा इसमें बताओ c1 अपॉन c1 की वैल्यू 1 आएगी क्या, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1 आएगी क्या? बिकॉज यहाँ पे देखो c1 कितनी है बेटा, c है ना, एंड c2 इज ऑल्सो c, ऑल राइट। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यहाँ पे 1 को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, c1 अपॉन c2, यस और नो, c1 अपॉन c2 मीन्स तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 अगेन लेट राइट ओवर हियर, a1 अपॉन a2, इसको लिख सकते हैं ना a1/a2 इक्वल टू b1/b2 b1/b2
इक्वल टू 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हो, C1/C2 से, बिकॉज C1 भी C है, C2 भी C है, इक्वल टू C1/C2। ऑल राइट, आपको पता है जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल होते हैं तो वी गेट को इंसिडेंट लाइन, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। ऑल राइट, एंड इस केस में क्या मिलता है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स ऑप्शन 1 एंड 4 इज करेक्ट। तो 1 और 4 किस में आ रहे हैं, बी में, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? ऑल राइट, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। If mode of some data is 7 and their mean is also 7, then we have to find median. So we know the empirical relation among mean, mode and median. That is what? That is mode. Let me write over here. Empirical relation among mean, mode, median is mode equals to 3 median. 3 median minus 2 mode. Minus 2 mode. All right. And mode how much we are given, sorry, mode will क्या होगा, 3 median minus 2 mean. Let me erase it. We'll get how much, minus 2 mean. Okay. Mode how much we are given, 7, will be equal to 3 median minus 2 mean. Mean how much we are given, sir? Mean is also 7, minus twice of 7, isn't it? 7 as it is will be equal to 3 median minus 14, yes or no? Now 7 as it is, this minus 14 will be transposed from RHS to LHS, then over here it will be positive 14 will be equal to 3, m for median, 3 median, right? So 14 plus 7 is 21, and this 3 will be transposed from RHS to LHS. It will be over here in division, sorry, by 3. 21 by 3 will be what, value of median, that is how much, 7. So ultimately how much we are getting, 7 will be equals to what, median, right? So value of median will be 7, means option D is correct. Clear to all? Now we have to solve question 18. Before that, just let me erase it. Yes, let's read the question number 18. In MCQ test, a student guesses the correct answer x out of y times. In total कितने attempt मारे उसने y, and how much correct answer he gave, x. ठीक है जी, x क्या किया इसने, करेक्ट ऑप्शन है इनके, ठीक है। y क्या है सर, y द टोटल अटेम्प्ट, राइट? टोटल अटेम्प्ट कितने किए इन्होंने, टोटल अटेम्प्ट इज y and x is the correct answer. If the probability that the student gets the answer to be wrong is 2/3, probability of wrong answer is how much we are given, क्या होता है फॉर्मूला, number of wrong answer upon क्या होगा, टोटल आंसर अपॉन टोटल आंसर। ये बात क्लियर है? ओके, तो रॉन्ग आंसर कितने इनके, 2 है सर। रॉन्ग कितने होंगे, 2, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर वी आर गिवन 2/3, तो रॉन्ग आंसर कितने होंगे बेटा, 2। टोटल आंसर कितने दिए, 3, राइट ना। 2 क्या है इनके, 2 विल बी द रॉन्ग आंसर। टोटल कितने हैं, टोटल इज 3, देन व्हाट विल बी द करेक्ट, हाउ मेनी आंसर विल बी करेक्ट, टोटल 3 है, 2 क्या है, रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर कितने होंगे बेटा, ऑब्वियसली 1 होंगे, यस और नो। अगेन व्हाट वी आर गिवन प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेसेस द आंसर टू बी रॉन्ग, तो रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर अपॉन टोटल आंसर। तो कितनी है रॉन्ग आंसर, कितनी है 2, टोटल आंसर कितने हैं 3, राइट ना। रॉन्ग आंसर कितने हैं सर, 2 है, टोटल आंसर हाउ मच, 3, तो करेक्ट आंसर कितने होंगे, 3 minus 2 1, इजंट इट। ये बातें क्लियर हुई आपको? तो क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ओके।
देन टोटल आंसर कितना था हमें पता था, टोटल अटेम्प्ट दिया या टोटल आंसर दिए कितने 3, तो y कितना है 3. व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज वी कैन राइट y इक्वल टू 3. y will be equal to how much beta 3. All right, okay, tell me one thing कि can we write y equal to 3 into 1. now y as it is will be equal to 3. अच्छा 1 क्या था करेक्ट आंसर, 1 क्या था करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर को क्या माना है x, क्या माना है x, मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने थे x थे. यू कैन राइट ओवर हियर x. so how much we are getting y equal to 3x, y equal to 3x. which option is correct, let me see. yeah, b option, sorry, a option will be correct. so in the a option we are getting y equal to 3x. all right, now look at question number 19. इसमें आपको पता है कि ए एंड आर अगर दोनों करेक्ट हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन देन वी हैव टू टिक ऑप्शन ए, राइट. इफ एज एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब आपकी एसेशन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इन दैट केस यू हैव टू मार्क बी, राइट ना. एंड इफ ए इज ट्रू आर इज फॉल्स देन सी ऑप्शन, इफ ए इज फॉल्स आर इज ट्रू देन डी ऑप्शन. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी. maximum value of this 1 by sec theta plus 1 by cos sec is 1. let me check it. 1 by sec is what, cos theta. 1 by sec को क्या लिखेंगे cos theta plus what is the value of 1 by cos sec, sin theta. बेटा we know one thing कि whether it is cos theta or sin theta maximum value of cos theta or sin theta will be 1. इसकी maximum value कितनी होगी 1 प्लस sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, क्योंकि cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कहाँ होती है 0 डिग्री पे, दैट इज 1. एंड sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज 1 एट 90 डिग्री. गॉट ना. तो 1 + 1 = 2, बट यहाँ क्या बोला है दोनों का सम 1, तो ऑब्वियसली ए क्या हमारा फॉल्स है. बी देख लेते हैं बेटा. पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ sin थीटा एंड cos थीटा 1, ये तो ट्रू है सर. देन विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, A is false, R is true, D option. तो 19 का जो ऑप्शन होगा that is D. Got it? Now look at 20th question. The probability of getting a bad egg in a lot of 400 is 0.035. Number of good egg in a lot is this much. Tell me one thing, total how many eggs are good? 386. And total eggs are how much? 400. then what will be the probability of getting good egg. अगर मैं good egg की बात करूं तो क्या होगा, कितने good egg हैं बेटा 386 अपॉन टोटल egg कितने हैं सर, टोटल egg is given we are 400, total egg how much we are given 400. all right, so on simplification you will get 0.965. कितने मिलेंगे आपको, on simplification you will get 0.965. got it. में 386 को अगर 400 अब डिवाइड करेंगे then you will get 0.965. okay, now what is the probability of getting bad egg 0.035. तो bad egg की कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, not bad, means probability of गेटिंग नॉट बैड एग. नॉट बैड बी पे बार लगा दो या फिर नॉट बी लिखोगे, ठीक है. विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग. यस और नो. अब मुझे बताओ नॉट बैड को गुड ही तो बोलेंगे ना बेटा. प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ क्या बोला है, नॉट गेटिंग बैड. नॉट गेटिंग बैड मीन्स गुड, अगर बैड नहीं है तो क्या गुड है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड कितना मिलेगा बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड है कितनी है 0.035. ऑन सिंप्लीफिकेशन हाउ मच विल यू गेट, जब इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 0.965. 0.965. तो ऑल राइट, ऑब्वियसली सेम है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड 1. 0.9 मतलब जो आपका एसर्शन है दैट इज ट्रू. एसर्शन ओवर हियर इज ट्रू. ठीक है जी. नाउ रीजन क्या बोलता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 - p. ऑब्वियसली ये भी क्या है ट्रू है.
और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड किया। मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए, बिकॉज यहाँ पे एसेंशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन ए। ऑल राइट।